हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Due to the failure of constitutional is a machinery in a state. What do you mean to the emergency due to the failure of constitutional machinery in the state? It is a duty of the union government of ensure that is the governance of state is a carry on is a accordance with the provision of the constitutions. Under Article 356, the president may be issued the is a proclamations of impose emergency is a state if he certifies on receipt of a report from the governor of the state or otherwise that a situation has the arisen under which the government of the state cannot be carried on the smoothly. In such a situations, is a proclamations of emergency by the president is called is a proclamations on account of there is a failure. A breakdown of the constitutional machineries in a popular language it is called the presidential rule. Like a national emergency such as the proclamations is a must also be a place before both the houses of parliament approval. In this case, approval must be given within the 2 months. Otherwise, the is a proclamations is caused by the operate. If approved by their parliament, their proclamation remaining the valid for the 6 months at the time. It can be extended for another 6 months, but not is a behind 1 years. However, emergency is a state can be extended behind 1 year if 1 year if is a first year of national emergency already is a operations or if and the second the election commissions is a certifies that election to that state assembly cannot be held. These types of emergency has been imposed in the most of the state at the one time or the other for a number of time. It was in 1951 that this types of emergency was imposed for the first time in the Punjab state. In 1957, the Kerala state was put under the presidential rule. There has been to many cases of the misuse of the constitutional breakdown. For example, in the 1977, when the is a Janta Party come into power at the center, the Congress Party was almost wiped out of the North Indian state. One, this is an excuse, Desai government at the center dismissed and the nine state government where a Congress was still in a power. This action of is a Moharajis Desai. Morarji Desai's government was strongly is criticized by the Congress of other. But when to 1980, after Janta government has lost a power, Congress come back to the power at the center under Mrs. Gandhi is a leadership and the dismissed all then the Janta Party state government. And in both cases there was no failure of the constitutional machinery, but action were taken only on the political ground. In 1986, emergency was imposed on Jammu and Kashmir due to the is a terrorism and insurgency in all. There are more than 100 times that emergency has been imposed in a various state for one reasons of other. However, after 1995, the use of the provision has errors been made. The next year effect of the impositions of presidential as a rule in a state. The declaration of emergency due to the breakdown of constitutional machinery in a state has the following fact. The president can assume to himself all any of the functions of the state as a government or he may be waste all or any of those as a function with the governors or any other executive authorities. And next year the president may be dissolve the state legislative assembly or put it under suspensions. He may be authorized to the parliament to make law as a behalf of the state legislatures. And the president can be make any other is an incident or the consequentially is a provision necessary to give effect to be object of proclamation. The way of presidentials as a rule was imposed on the various occasions has arisen many questions.
at the time of situation really demanded it, but at the other time, presidential as a rule was imposed is a purely on the political ground to be a top is a top pulse their missionaries and the format to the party different from one at the center. Even if that is a particular parties enjoyed a majority in their legislatives assemble and suspended to the dissolving is the assemblies and not a giving a chance to be other political party to be form a government in a state has been due to the is the partisans and the considerations of the union government which article 356 has been clear misused. In the view of the above fact, the Article 356 has become a very is a controversial in the spirit of there is a safeguard provided by the 44 is the Amendment Act, and this provision has been to the alleged to be a misuse by the Union government. That is why there is a demanded either for the declarations are making to provision in the Constitution to be restricted to misuse of the articles. The is a Sarkarai commissions which was the appointed to be review the center state relation also recommended that article 356 should be used only as a last resort. That is why there is a demanded either for it is a declarations are making the provision in the constitution to restrict the misuse of the article. The Sarkari commissions which was appointed to be reviews their central state relation also recommended that article 356 should be used only a last resort. The commission also suggested that the state legislative assembly should not be dissolved unless the proclamations is approval by the parliament. And if the further suggested that all the possibility of the forming a alternative government should be fully exposed before the center impose emergency in a state on ground of the breakdown of constitutional machinery. The Supreme Court held in the Bhumai's case that is assembly may not be dissolved till the is a proclamations are approved by their parliament. One of few occasional use and such as when to the Gujarat government recommended use of the article 356 is the Uttar Pradesh. The president returned it there is recommendance for the reconsiderations. The union government took the hint and dropped the proposal. देखा जाए तो दोस्तों ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकालीन, देखिए ये तो हमारा होता है घरेलू मामला जिसमें जो है संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है तो उस समय जो है आपातकालीन घोषणा की जाती है और इसका वर्णन अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जा रहा है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य में आपातकालीन घोषणा जारी कर सकते हैं यदि वह राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर या किसी अन्य प्रकार से संतुष्टि हो जाए कि वह ऐसी स्थिति हो गई है जिससे राज्य का प्रशासन जो है विधि पूर्वक नहीं चलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकालीन घोषणा करके राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। आम बोलचाल में से राष्ट्रपति शासन भी कहा जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की तरह इस दूसरी प्रकार की आपातकालीन घोषणा को भी संसद के दोनों सदनों के सामने 2 महीने के अंदर पुष्टि के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य माना जाता है। संसद द्वारा 2 महीने के अंदर पुष्टि न होने पर वह स्वयं ही समाप्त भी हो जाता है। संसद द्वारा पास होने पर जो है घोषणा एक बार में 6 मास तक वैध रहती है। इसको अलग 6 महीने के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस अवधि को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है यदि राष्ट्रपति जो है अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल पहले ही जारी हो, यानी राष्ट्रपति ने पहले ही अगर आपातकालीन की घोषणा कर चुके हैं तो ये राष्ट्रीय आपातकाल पहले की जारी हो तो ये चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि राज्य विधानमंडल का चुनाव करना संभव है या नहीं, यानी चुनाव होगा कि नहीं, ये सारे जो है दबदबा होता है चुनाव आयोग के पास और वही प्रमाणित करता है कि ये चुनाव होगा या नहीं। इस प्रकार के आपातकाल को अधिकांश राज्य में समय समय पर अनेक बार लागू भी किया गया था। 1951 में पहली बार पंजाब राज्य में इस प्रकार का आपातकाल लागू किया गया था और 19
1957 में, यानी 1957 में केवल राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, यानी केरल में ही जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और 1970 में पूरे 9 राज्य में एक साथ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और यह कदम मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने उठाया था। कांग्रेस ने इसकी कड़ी आलोचना भी किया था। और 1980 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो जिन राज्यों में जनता पार्टी बहुमत से थी वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कहते हैं 1986 में जो है उग्रवाद और आंतरिक विद्रोह के कारण जम्मू व कश्मीर में आपातकालीन घोषणा की गई थी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 100 बार से भी अधिक भिन्न भिन्न राज्यों में एक साथ दूसरे कारण से आपातकाल लागू हो चुकी है। उसके पश्चात हमारा टॉपिक आता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के क्या प्रभाव पड़ते हैं। कहते हैं राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण घोषित आपातकाल के जो है कुछ प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। पहला तो यही प्रभाव मिलता है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्य अथवा किसी एक कार्य को अपने हाथों में ले सकता है अथवा उनको राज्यपाल या किसी अन्य कार्य अधिकारी को सौंप भी सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को स्थगित अथवा भंग भी कर सकता है और वह संसद के राज्य विधानमंडलों के साथ स्थान पर कानून निर्माण के लिए जो है अधिकृत भी कर सकता है। घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति कोई अन्य आवश्यक प्रावधान भी लागू यहाँ पर कर सकता है। तो सारे जो है राष्ट्रपति के शासन लागू करने का प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन लागू किया भी गया था उसे अनेक प्रश्न को जन्म भी दिया है। कई बार तो परिस्थिति की मांग थी और कई अवसरों पर राष्ट्रपति शासन केवल राजनीतिक आधार पर केंद्र से विभिन्न राजनीतिक दल की सरकार को गिराने के लिए लागू किया गया था। कहते हैं हमारी राजनीति में ये सब भी बहुत आसान तरीक़ों से किया जा सकता है। किसी को सरकार गिराने के लिए इस तरह के प्रावधान भी किया जाता है। यद्यपि उस दल का भी जो है विधान सभा के पुण्य बहुमत था। विधानसभाओं के स्थगित अथवा भंग करने तथा अन्य राजनीतिक दलों को राज्य में सरकारों के निर्माण का अवसर न देना केंद्रीय सरकार के जो है पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण ही ऐसा हुआ है, जिसके लिए अनुच्छेद 356 का जो है सभ्यता जो है दुरुपयोग हुआ है। यानी कहते हैं कुछ रूल रेगुलेशन बनाई जाती है तो कुछ रूल रेगुलेशन का उसका दुरुपयोग करना भी लोग सीख लेते हैं। तो आज जो कहते हैं बहुत से जो आपातकालीन लगाई गई थी सिर्फ अपने जो है रोटी सेकने के लिए लगाई गई थी, इसका कोई भी मेन आधार नहीं थी इसमें। अगर बात करें उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर 356 जो है विविधाग्रस्त रहा है तो इसका अत्यधिक दुरुपयोग भी किया गया है। कहते हैं 44वें संशोधन अधिनियम में दिए गए सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद इस प्रावधान का केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग किए जाने का आरोप भी लगाया गया था। इसी कारण इस अनुच्छेद को संविधान से हटाने अथवा इसके दुरुपयोग को समाप्त करने का प्रावधान बनाने की मांग सामने आई है। सरकारी आयोग ने जिसे केंद्र राज्य प्रबंधन का पुण्य निर्धारण करने के लिए नियुक्त किया गया था अनुच्छेद जो है 356 के अंतिम हथियार के रूप में प्रयोग करने की सिफारिश की गई थी और ये ऐसा होना भी चाहिए। कहते हैं आपातकालीन ऐसे ना हो कि हर समय लगा दी जाए, ठीक है, आपातकालीन तब लगाना चाहिए जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाता है। आयोग के सुझाव के अनुसार राज्य विधानसभा के उस समय भंग न किया जाए जब तक जो है संसद आपातकालीन घोषणा को स्वीकार न करे। सरकारी आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि केंद्र द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकालीन घोषणा से पहले वैकल्पिक सरकार के निर्माण की सभी संभावनाओं के लिए सूचित प्रयास अत्यंत आवश्यक होती है। तो कहते हैं दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आपातकालीन जैसी शक्तियाँ हमें राष्ट्रपति के पास दिए हैं तो उसका कारण आधार यही होता है कि हम ऐसे संकटों में देश की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन कई लोग जो होते हैं देश की रक्षा की जगह अपना मतत्व निकालने के लिए ऐसे कार्य किए हैं जो कि सही भी नहीं है। कई टाइम तो आपातकालीन सिर्फ बेमतलब की लगाई गई थी, अपनी प्रभुसत्ता बनाने के लिए लगाई गई थी, जो देश के लिए जो है बहुत ही गलत साबित हुआ और देश के जो है काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं आपातकालीन की शक्ति मिली है तो जब प्रावधान हो, जब जरूरी हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। The next topic is the financial emergency here. The financial emergency is the most important. The third types of emergency is a financial emergency. The provide under Article 360, and it provides that it is a president is certified that a financial stability or credit of Indian or any of its a part it's a danger. He may be declared a state financial emergency. Like the other two types of emergency, it has also been approved by the Parliament.
It must be approved by their both House of Parliament within the 2 months. Financial emergency can separate as long as their situation demand and may be revoked by the subsequent of proclamations. The effects of financial emergency, there is the most important. The proclamations of financial emergency may be have to flowing consequence. The union government may be give to direction to any of the state regarding a financial matter. And the second, the president may be asked the state to be reduce the salaries and allowances of all or any class of person is a government service. The president may be asked the state to be resolve all the money bills for the considerations of parliament after they has been to the pass by the state legislature. And the president may be also give a direction for the reductions of salaries and allowances of the central government employees, including the judge of the Supreme Court and the High Court. तो यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है वित्तीय संकट, यानी जो है यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाया जाता है। कहते हैं इसको अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लिया गया है। तीनों प्रकार के आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में वर्णित वित्तीय संकट कहलाता है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भारत अथवा उसके किसी भी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। अन्य 2 प्रकार के आपातकाल की भांति इसको भी लागू होने के 2 मास के अंदर संसद की स्वीकृति भी मिलना आवश्यक होता है। जब तक स्थिति में सुधार न हो तब तक संकट काल जारी रह सकता है तथा इसको बाद में घोषणा द्वारा समाप्त भी किया जा सकता है। तो कहते हैं वित्तीय संकट जो है बहुत ही बुरा स्थिति में लगाई जाती है। अगर आपने देखा होगा श्रीलंका का जब वित्तीय संकट पड़ा था तो बहुत ही तहस नहस और बहुत ही नुकसान देखने को भी मिला था। कहते हैं वित्तीय संकट के क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार किसी भी राज्य को वित्तीय मामलों में संबंधी निर्देश दिया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्य के सरकारी कर्मचारी के वेतन व भत्तों को कम करने की सिफारिश भी किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित वित्तीय विधेयकों की संसद में विचारों के लिए राष्ट्रपति राज्य की सुरक्षा रखने के लिए भी कहा जा सकता है। यानी ये सारे प्रभाव हैं। अगर देखा जाए राष्ट्रपति केंद्रीय कर्मचारी जिनमें उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं उनके भी वेतन और भत्ते को कम करने का निर्देश दिया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो प्रावधान आते हैं वित्तीय संकट के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण था जिसमें हम इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में विस्तार पूर्वक जाने और जाना कि इमरजेंसी कब कब लगाई गई और इमरजेंसी के क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, आगे का चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है तो अगला वीडियो देखना मत भूलना। लेकिन आपको पता है कि जाते जाते एक बात जरूर करना है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो इसके लिए क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगला वीडियो जो है आपको प्राप्त नहीं होगा। कोई टॉपिक भी आप देखना चाहोगे तो अगर आप नाम लिखोगे, रिसर्च करोगे तो वो आपको टॉपिक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो सब्सक्राइब में आप जब जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि वीडियो का ऑप्शन आता है, वहाँ पर सारे वीडियो आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर द्वारा जो डाला गया है वो टॉपिक के हिसाब से आप अपना सेव करके जो है इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो।